Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Eid greetings to everyone. I hope all of you would be fine. So, let me start our today lecture. It's on page number 24, applications of Gauss's law. So what we have studied so far, if you remember, we have studied the Gauss's law, and the statement of Gauss's law was the electric flux through any closed surface is equal to charge enclosed by that surface divided by the permittivity epsilon naught. So, and this electric flux that was equal to the E dot A, where E is the electric field intensity, A is the area, equal to Q by epsilon naught. So the application of Gauss's law is you can find out the electric field intensity, and again you can also find out the charge on a body using the Gauss's law. So the first application of the Gauss's law, it's on page number 24, article number is 11.5.1, location of excess charge on a conductor. So first one, that is location of excess charge on a conductor. It's very useful to find out the distribution of charges on a conductor. Dear students, for example, you have any conductor, आपके पास एक कंडक्टर है एंड यू पुट सम एक्स्ट्रा चार्जेस, आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं इस कंडक्टर पे. सो ये जो चार्जेस होंगे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो वी विल फाइंड आउट दिस लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्जेस. अगर कोई भी कंडक्टर है और आप कंडक्टर पर एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ जाएंगे. कोई भी कंडक्टर है एंड वी पुट सम एक्स्ट्रा चार्जेस, तो एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ पे जाएंगे. सो वी विल स्टडी दिस वन. लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये रीअरेंज होते हैं ऑन द सरफेस, और उसी कंडीशन पे to reduce the repulsive forces. For example, you put some positive charges, so there is a repulsive force between these two charges and so on. So ये charges इस तरह distribute होते हैं कि ये जो force of repulsion है between two charges कि इसको reduce करे, कम करे, और इसी condition को basically electrostatic equilibrium भी कहते हैं. इसी condition को जहाँ पे net flow of charges जो है वो zero हो. So before going to this topic, आपके बुक में स्टार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है we know that the electric field equal to zero at all point due to electrostatic equilibrium. So let me write first electrostatic equilibrium. What is electrostatic equilibrium? कंडीशन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए. फर्स्ट हमें ये जानना होगा, देन वी हैव टू कम टू दिस टॉपिक. सो यू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द इक्विलिब्रियम इन योर एट 9th कोर्स, और यहाँ मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हो, जहाँ पे टॉर्क ज़ीरो हो. सो नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो तो हम कहते थे बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी आइदर एट रेस्ट or in uniform motion. यहाँ पे electrostatic equilibrium, that is related with the charges, charge body. So let me simply electrostatic equilibrium के लिए दो simple condition होने चाहिए. The net flow of charges का जो motion है, the net motion of
चार्जेस, कोई भी चार्जेस फॉर एग्जांपल आप किसी बॉडी पे रखते हैं या कोई भी कंडक्टर हो, सो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, जो नेट मोशन ऑफ चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ज़ीरो होगा. देयर इज़ नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस मोबाइल चार्जेस और ज़ीरो. क्लियर. सो चार्जेस आपने किसी भी कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्जेस रख दिए, सो देयर इज रिपल्सिव फोर्सेस, तो ये इस तरह अरेंज होते हैं कि इसको रिड्यूस करे और नेट जो मोशन होगा चार्जेस का कि वो ख़त्म हो जाए. देयर इज़ नो नेट मोशन ऑफ द मोबाइल चार्जेस. क्लियर. सो दिस इज ज़ीरो. नेक्स्ट, द रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor ज़ीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये कंडक्टर के इनसाइड पे ज़ीरो होगा. अगेन अगर आप कहते हैं कि देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर चार्ज मोशन करेंगे. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा देन द चार्जेस will be at rest and there would be no net motion. Just like for example जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, if you remember clear your concept, for example अगर आपके पास कोई भी piece of paper है, you know about the polarization. for example अगर आपके पास एक piece of paper है और इस piece of paper पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, let I apply the electric field. This is the applied electric field E. So what we know, ऑलरेडी आपने कैपेसिटर में पढ़ा था पोलराइजेशन. सो ये जो चार्जेस होंगे इनसाइड दिस पीस ऑफ पेपर, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस शिफ्टेड. सो व्हाट हैपन, इंटरनल जो नेगेटिव चार्जेस है वो इस साइड पे आ गए. इट्स ऑलवेज मूव्स, नेगेटिव जो चार्जेस है इट ऑलवेज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके पास पॉजिटिव चार्जेस उस साइड पे आते थे. सो अगेन देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और इसी को क्या कहते थे, पोलराइजेशन. सो ये चार्जेस इस तरह रीअरेंज होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिमेंबर ज़ीरो. दिस इज ज़ीरो. यू हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आपके पास इंटरनल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इन दिस डायरेक्शन. सो एक इंटरनल फील्ड है और एक एक्सटर्नल फील्ड है, दोनों आपस में कैंसिल होते हैं. सो द नेट फील्ड इज ज़ीरो. सो रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. नाउ लेट मी कम टू द टॉपिक, this one, location of excess charge on a conductor. So let me take the example जो already book में है. For example we have a conductor that is in the form of sphere, and let we have put some extra charges. हम कुछ extra charges रखते हैं इस कंडक्टर पे. Like we have put some extra charges on the conductor. Like we want to find out the electric field intensity inside the conductor, and you know that is equal to zero अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो अगर आप कुछ चार्जेस रखते हैं, लेट्स सी के चार्जेस कहाँ पे पेयर होंगे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इससे पहले मैंने बता दिया अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर इज ज़ीरो. तो ये सब चार्जेस कहाँ पे होंगे, दैट इज ऑन द सरफेस. सो फॉर दिस we can calculate it mathematically. That is one logically we can say the under electrostatic condition this is zero, so the charges must
be on the surface of the conductor, यहाँ पे होंगे. So how we can find out it? By using the Gauss's law, and that is the application of the Gauss's law. You can find out the electric field intensity for something like symmetric charge distribution. You can easily find out the electric field intensity. So what we do for this, we have to consider a Gaussian surface. हम एक Gaussian surface लेंगे. Gaussian surface is, remember, an imaginary closed surface. ये एक imaginary closed surface हम लेंगे. This is sphere, तो different cases में हम different Gaussian surface लेंगे. That is again an imaginary surface. Let me write it. In order to solve the Gaussian surface, we'll use this word again and again. हम बार बार यूज करेंगे इस word को. So remember, this is an imaginary closed surface. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट गॉसियन सरफेस लेंगे. सम टाइप इट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, इट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब, और इट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर. सो डिफरेंट केसेस में हम डिफरेंट लेंगे. इट्स इमेजिनरी क्लोज सरफेस, और इसी पे हम गॉसेस अप्लाई करेंगे, और उसी से हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज कीओ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट x location of the axis charge, so what we consider a Gaussian surface. It's an imaginary surface just inside the surface of the conductor, and let this Gaussian surface, again it's in the form of the sphere, and that is just inside the surface of the conductor. So we can apply the Gauss's law. Again, ये mathematics book में नहीं है, but you can do it very easily. As we know, Gauss's law is electric flux through any closed surface that is equal to Q by epsilon naught. That is the charge enclosed by epsilon naught. Clear? And this flux that is equal to EA, let we consider the theta equal to 0 degree. So EA cos of theta, cos 0 is 1, that is equal to Q by epsilon naught. Now under electrostatic equilibrium, in case of electrostatic equilibrium, the electric field inside the conductor is 0. Clear? This is inside the conductor. Remember, the electric field is not 0 outside the conductor, but the electric field inside the conductor is 0 under electrostatic equilibrium. So this is 0 here. So let this is equation 1 put in equation 1. Let me put it in equation 1. So what we get, equation 1 implies this is 0. So 0 is equal to Q by epsilon naught, and what we get this thing. Oh, the charge enclosed is 0 inside this Gaussian surface. So charge कहाँ पे गया? Where this charge has gone? So charges यहाँ पे आएंगे. This means ये जो extra charges जो आप रखते हैं, that's come to the outer surface. ये इस out surface पे आ जाते हैं. Clear? So the charge enclosed, this is 0. This means ये जो extra charges है, that will be on the outer surface of the conductor. Clear? So that is the first application of the Gauss's law. ये जो extra charges होंगे, that resides on the outer surface of the conductor. So note that is the first application of the Gauss's law. Extra charges जो आप रखते हैं, that is 0. I can again
देयर इज़ अनदर एग्जांपल मैं सिंपल देता हूँ. ये लेट फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है, कोई स्टूडेंट, चार्जेस को अगर हम इंटरनली रखते हैं तो क्या होगा. लेट फॉर एग्जांपल लेट वी हैव अ स्पेयर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्पेयर है, क्लियर. और हम स्पेयर में लेट आई क्रिएट अ कैविटी इनसाइड दिस स्पेयर. देयर इज अ कैविटी इनसाइड दिस स्पेयर. स्पेयर के अंदर एक कैविटी मैंने बना दी. लेट अगर आप कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है और आप यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्जेस लेके आते हैं तो क्या होगा. नेगेटिव जो चार्जेस होंगे इस कंडक्टर में डेट विल मूव टूवर्ड दिस सरफेस. क्लियर. ये पॉजिटिव डेट इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस सरफेस, रिमेंबर इनिशियली. तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे इस सरफेस पे. सो व्हाट विल हैपन, अगर ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ पे कौन से चार्जेस बन जाएंगे. यू हैव समथिंग पॉजिटिव चार्जेस. क्लियर. मैंने स्टार्ट में बताया था इनिशियली कोई भी एटम आपके पास न्यूट्रल होता है. यू हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड पे आ जाते हैं तो पॉजिटिव उस साइड पे रह जाते हैं. सो पॉजिटिव इस सरफेस पे आ जाएंगे. लेट इफ यू टच दिस रॉड, ये जो पॉजिटिव चार्जेस अगर आप टच करते हैं इस नेगेटिव के साथ, इस सरफेस के साथ, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. क्लियर. तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इट ऑलवेज रिमेन ऑन दी सरफेस. सो नोट समथिंग अगेन एट द एंड व्हाट वी हैव स्टडीड दी सो फार. लेट मी राइट द नोट फॉर इट MCQs or something you must note this. Electric field inside a conductor is 0. Electric field inside the conductor is 0 under electrostatic equilibrium condition में. क्लियर. आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तो E equal to 0 inside the conductor. There is no net motion of charges. Remember, E 0 हो गया, so there is no net motion of the charges. And again one thing जो बार बार अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं या IT MCQs में आते हैं, अगर आप कोई चार्जेस रखते हैं और वो इरेगुलर शेप हो, सो रिमेंबर वन थिंग, ये जो चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा हाईली कंसंट्रेशन वहाँ पे होंगे जहाँ पे आपके पास कर्वेचर ज़्यादा होता है. सो द चार्जेस इज मोर कंसंट्रेटेड, द चार्जेस are more concentrated in the region, तो उसी रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेट होंगे जहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर होगा, ग्रेटर कर्वेचर. रिमेंबर जस्ट लाइक दिस. कोर्स में तो ये नहीं है लेकिन जस्ट कंसेप्चुअली. फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह एक सरफेस है, तो इस सरफेस में लेट यू हैव अ कर्वेचर हियर. यहाँ पे अगर कर्वेचर है तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन जो कर्वेचर है यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा चार्जेस का. क्लियर. यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा इनके दरमियान पैरेलल, यहाँ पे वो फोर्स कम होगा. सो ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पे कर्वेचर होता है वहाँ पे होता है. क्लियर. सो यू स्टडी दिस एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में. एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अगेन द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ फॉर सम अदर केसेस. सो दैट इज़ फॉर टुडे. ओके, सी यू.